Hello children, welcome you all on my YouTube channel PT Learning Point. I hope you all are doing well. So today in this video I'm going to explain few important fact about this chapter, and this chapter is about political science. Okay, chapter 1, power sharing. So I hope you all have revised this chapter, but in this video I'm going to explain some important topics about this chapter. So this is the chapter revision, and after that we will complete paper practice with the important question. So I hope this video will be useful for you all people. So let's continue with this video. Students, we have studied, okay, we have studied in the previous class how in government other than democracies and power was misused and people suffered for long years. So we have the examples of Chile under Pinochet and Uganda under Idi Amin. You have studied this chapter in ninth class, so I hope you have remembered this. So Poland under a single party, and Italy under Mussolini, and the Germany under Hitler, and millions lost their lives and their property, and they suffered agonies under the dictators. Student, in this chapter, we are trying to understand what is the meaning of power sharing. Okay, so we will understand what is the exact meaning of the power sharing and why it is useful for the democratic country. So, if we talk about the democratic country, on the other hand, we can see power is shared under a democracy, and it does not allow any group to exploit the weaker section of the society. Those who are weaker, those who are weak in our society, okay, weaker section in our society, they should not be exploited. And in non-democratic countries, those in power do not want to give it up, and they resist every attempt to power being vested away from their hands. So that's why in democratic country, power sharing is very important, and this does not happen in democracy as power is shared. So पावर शेयर यानी कि दो लोगों के बीच में जो पावर शेयरिंग की जाती है वो क्यों इम्पोर्टेंट है? अगर जनरली देखा जाए तो अगर इंडिया की एग्जांपल हमने इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी आज जो है पावर शेयरिंग को जो है वर्टिकली और हॉरिजेंटल दोनों ही, जिसको कि आगे हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज दिस सिस्टम। सो इस बेसिस पे जो है पावर को डिवाइड किया गया और आज भी हमारी गवर्नमेंट इसी पे बेस्ड होकर के रन करती है। सो रेगुलर एंड पीरियोडिकल इलेक्शंस गिव द पीपल अ चांस टू डिस्कार्ड दोज लीडर हु हैव अ बैड रिकॉर्ड, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी हमें राइट मिला हुआ है कि अगर हमारा लीडर जिसको हम लोगों ने चूज करके उसको पावर दे रखा है गवर्नमेंट को रन करने के लिए, कंट्री को, स्टेट को रन करने के लिए, अगर वो सही से वर्क नहीं कर रहा है या फिर सिटीजन्स उससे सेटिस्फाइड नहीं है, हमारी कंट्री उससे सेटिस्फाइड नहीं है, सो वी कैन एलिमिनेट एंड वी कैन रिमूव इन नेक्स्ट election. So that's why election, and we have studied many chapters on this point, according to this point in previous classes. I mean नाइन्थ क्लास में हम लोगों ने बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स को पढ़ा है जिसमें ये डेमोक्रेसी से लेकर के व्हाट इज द यूज ऑफ वर्किंग इंस्टीट्यूशन and what is the importance of working institution in our country we have studied in previous classes. So students, अब जो इस चैप्टर में इम्पोर्टेंट है वो है बेल्जियम एंड श्रीलंका। और ये इस चैप्टर यानी कि पावर शेयरिंग की अगर बात करें तो पावर शेयरिंग के लिए ये आपको टू एग्जांपल्स इसमें मिलेंगे, जिसमें आपको बेल्जियम एंड श्रीलंका, श्रीलंका के एग्जाम्पल्स को देखेंगे और इसमें हम समझेंगे कि पावर शेयरिंग कैसे की जाती है और पावर शेयरिंग कैसे इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स अंडरस्टैंड द पावर शेयरिंग arrangement in two democracies, Belgium and
श्रीलंका। स्टूडेंट्स, बेल्जियम आपको पता है कि बेल्जियम एक यूरोप की कंट्री है एंड श्रीलंका जो कि एशिया कॉन्टिनेंट में आता है। ये तो आपको पता ही होगा। ओके, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बेल्जियम की स्टूडेंट्स बात करें तो बेल्जियम जो है आपका वो नॉर्थ वेस्ट यूरोप में सिचुएटेड है एंड उसके जो आसपास यानी जो बॉर्डर की अगर हम बात करें तो नीदरलैंड्स, जर्मनी, फ्रांस, ये सारे कंट्रीज आते हैं। और वहाँ के जो लोग हैं वो टू कैटेगरीज में डिवाइड हुए हैं। जैसे कि वो पहले क्या था कि इंडिपेंडेंट मोनार्की था 1838 में, 1830 यानी कि 1830 में एक monarchy, independent monarchy था ये। And during the both world wars it was the occupied by Germany but freed itself by the end of those wars. So Belgium became a federal state in February 1993. So students question आपसे ये भी पूछ सकता है, हम साथ साथ में जो पॉइंट आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा उसको हम मेंशन करते चलेंगे कि कौन सा पॉइंट आपके एग्जामिनेशन में एज ए क्वेश्चंस आ सकते हैं और वो एज ए क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो बेल्जियम जो है आपका वो एक फेडरल स्टेट बना फरवरी 1993 में। यस, फरवरी 1993 में वो आपका एक फेडरल स्टेट बना, जो कि आपसे पूछ सकता है कि बेल्जियम जो है एक फेडरल स्टेट कब बना था। सो बेल्जियम के जो कैपिटल थी वो ब्रसल्स में लोकेटेड थी और जो एरिया वहाँ का था वो 30,521 स्क्वायर किलोमीटर में था। और वहाँ पे जो पॉपुलेशन थी वो, अगर पूरे पॉपुलेशन की बात की जाए तो जो प्रेजेंट टाइम में हरियाणा है, यस हरियाणा इज इन स्टेट्स इन इंडिया, आपको पता भी होगा। तो हरियाणा की हाफ जो पॉपुलेशन है, अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा के। सो यहाँ पे चलिए अब इसके कुछ ग्रुप के बारे में बात करते हैं। स्टूडेंट्स, आई होप यू आप लोग को एथनिक के ग्रुप के बारे में पता होगा कि एथनिक का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एथनिक ग्रुप, because you have studied this chapter in your classroom and you have other sources. So ethnic, what is the meaning of ethnic? various groups, जो हमारे सोसाइटी में बहुत सारे सोशल ग्रुप्स हैं, किसी न किसी रिलीजियस या किसी न किसी लिंग्विस्टिक जो है बेसिस पे अगर वो इस्टेब्लिश होते हैं, दैट इज कॉल्ड द एथनिक ग्रुप। ओके, सो एथनिक आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि एथनिक का इसमें यूज़ इसलिए है क्योंकि एथनिक की कम्युनिटी को हम पहले समझेंगे कि व्हाट इज़ द एथनिक कंपोजिशन इन बेल्जियम। सो वहाँ पे अगर हम बात करें 59% वहाँ की टोटल पॉपुलेशन थी इन द फ्लेमिश रीजन। ओके, इन द फ्लेमिश रीजन। ओके, एंड दे स्पीक डच, यानी कि ये जो लोग थे ये डच बोलते थे, डच लैंग्वेज यूज़ करते थे। ओके, डच लैंग्वेज यूज़ करते थे। 40% वहाँ की जो पॉपुलेशन थी वो वेलोनिया रीजन में रहती थी, वहाँ का एक एरिया था। एंड दे स्पीक फ्रेंच, यानी कि 59% जो पॉपुलेशन थी वो डच बोलती थी और आपके 40% जो वहाँ की पॉपुलेशन थी वो क्या बोलती थी, वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलती थी। एंड रिमेनिंग 1% पीपल स्पीक जर्मन, यानी कि 1% वहाँ की पॉपुलेशन जो थी वो ओनली 1% जो कि जर्मन बोलती थी। अगर कैपिटल की बात करें, ब्रसल्स जो कि बेल्जियम का कैपिटल था, सो 80% पीपल जो है वहाँ की फ्रेंच बोलती थी एंड रेस्ट 20% स्पीक डच, यानी कि अगर हम ऐसे परसेंटेज में देखें तो 80% पॉपुलेशन फ्रेंच स्पीकिंग थी एंड 20% पॉपुलेशन इज डच। सो
if we talk about the socio and economic status in the Brussels, in the Belgium, French speaking community, which was the minority. Students, minority, majority, you have studied in previous classes also. तो minority क्या होती है कि किसी भी अगर कंट्री के अंदर कोई ऐसा ग्रुप जो किसी न किसी तरीके से डिफरेंट है, या फिर उनके जो नंबर्स हैं वो लेस हैं, वो अगर लार्जर ग्रुप से वो थोड़े से कम हैं, तो वो माइनॉरिटी में आपके आते हैं. सपोज दैट अ ग्रुप ऑफ पीपल differ erroneously on the particular from the their language, groups, ethnics, so they are called the minority. तो माइनॉरिटी किसकी थी? क्योंकि डच जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि 80% जो है फ्रेंच स्पीकिंग वहाँ पे थे, और 20% जो थे वो डच आपके स्पीकिंग थे. तो जाहिर सी बात है कि डच जो थे वो माइनॉरिटी थे, was for ahead to Dutch speaking community which was in majority. So minority कम्युनिटी वॉज वेल एजुकेटेड, यानी कि जो माइनॉरिटी थी, यानी कि 20% जो पॉपुलेशन थी, वो क्या थी? वो वेल एजुकेटेड थी बेल्जियम के अंदर. एंड दे आर रिच ऑल्सो. यस, दे आर रिच, पावरफुल, एंड ऑक्यूपाइड इम्पोर्टेंट पोजीशन इन द गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी. यानी कि गवर्नमेंट के जो भी पोस्ट होते थे, गवर्नमेंट के जो भी उनके डिपार्टमेंट्स होते थे, उसमें जो ब्यूरोक्रेसी की पोजीशन होती थी वो इनके पास थी. सो दिस ग्रेजुअली गिव्स बर्थ टू इन इन सेटिस्फाइड कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज. जाहिर सी बात है कि जब वहाँ पे अगर किसी एक ग्रुप को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाएगा और दूसरे को वो इम्पोर्टेंस या वैल्यूज़ नहीं दी जाएगी, तो दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट या फिर किसी डिस्प्यूट के होने की जो चांसेस होगी वो मैक्सिमम बढ़ जाएगी. सो दिस सिचुएशन वाज इन ब्रसल्स एंड द बेल्जियम ऑल्सो. कॉन्फ्लिक्ट जो था वो किस चीज़ को लेकर के था कि उनके जो पावर थे वो इक्वली शेयर नहीं थे, यानी कि जो पोजीशन उनको दिया गया था वो इक्वली शेयर नहीं था. सो conflict and problems between the two communities was sharper in Brussels, and because the majority of population was French speaking there. 80% थी वहाँ की फ्रेंच स्पीकिंग, और 20% आपके डच थी. एंड टू वर इन द मेजोरिटी इन द कंट्री, वर इन माइनॉरिटी देर 20%, यानी 80% और 20% पे यहाँ पे मेजोरिटी और माइनॉरिटी देखने को मिल रही थी. सो नाउ लेट कंपेयर द कॉन्ट्रास्ट एथनिक एंड लिंग्विस्टिक. यानी कि एक जो था वो एथनिक ग्रुप था, और दूसरा जो था वो लैंग्वेज यानी लिंग्विस्टिक ग्रुप में था. सो कंपोजिशन बेल्जियम विद द श्रीलंका. अब यहाँ पे एक एग्जांपल हम श्रीलंका के भी लेंगे कि श्रीलंका जो था वो एक आइलैंड था, एन आइलैंड इन द इंडियन ओशियन, अबाउट 80 किलोमीटर ईस्ट. 80 80 किलोमीटर ईस्ट ऑफ द साउदर्न टिप ऑफ द इंडिया. एंड इट्स एरिया, जो अभी ब्रसल्स का हम लोगों ने बेल्जियम का एरिया देखा था कि वहाँ का एरिया कैसा था, तो वो 30,521 स्क्वायर किलोमीटर था. लेकिन अगर श्रीलंका की बात करें तो उसका जो एरिया था टोटल वो 65,610 स्क्वायर किलोमीटर में था. और वहाँ की पॉपुलेशन भी जो है सेम एज अ हरियाणा थी, जबकि बेल्जियम में क्या था कि हरियाणा के हाफ पॉपुलेशन थी, लेकिन श्रीलंका की जो पॉपुलेशन थी वो एज ए इक्वल हरियाणा थी. सो द आइलैंड वाज नोन एज द लंका, यानी कि सिंहाला द्वीपा. सिंहाला वहाँ की लैंग्वेज थी, जो एक कम्युनिटी थी. एंड द सेलन डिफरेंट टाइम्स. सो एंटिल 1792, अगर 1792 तक की बात की जाए, तो वो वहाँ के लोगों को सीलोन बोला जाता था. ओके. एंड द कंट्री बिकम इंडिपेंडेंट, यानी कि वहाँ की कंट्री इंडिपेंडेंट कब बनी? 4 फरवरी 4 फरवरी 1948. एंड ऑन 22 मई, एंड द रिपब्लिक श्रीलंका वॉज
क्रिएटेड, यानी अगर श्रीलंका के क्रिएशन की बात की जाए तो वो 22 मई रिपब्लिक ऑफ श्रीलंका वॉज क्रिएटेड। सो लेट अस लुक एट द डाइवर्सिटी एग्जिस्टिंग इन द पॉपुलेशन इन श्रीलंका। तो श्रीलंका को अगर हम देखते हैं तो पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ द सिंहाला स्पीकर्स, यानी वहाँ पे सिंहाला लैंग्वेज को बोलने वाले लोगों की परसेंटेज क्या थी, 74%, एंड तमिल स्पीकिंग 18%। तो यहाँ भी मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी देखने को मिल रहा है। सो इंडियन तमिल्स 5%, whose forefathers came from the India, work in the tea and rubber plantation owned by the British. And this topic you have studied in your previous classes, I mean 6th and 7th classes, this topic given. And these peoples didn't return to India but settled in the Sri Lanka itself. Okay, सो मोस्ट ऑफ द सिंहलाज आर बुद्धिस्ट, यानी कि जो सिंहलाज थे श्रीलंका के अंदर, ये क्या थे, ये बुद्धिस्ट थे, बौद्ध रिलीजन को फॉलो करने वाले थे ये बुद्धिस्ट। वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज एंड मुस्लिम, यानी कि जो सिंहलाज थे वो आपके बुद्धिस्ट थे, और अगर तमिल्स की बात की जाए तो इनकी कम्युनिटी में हिंदूज एंड मुस्लिम थे। क्रिश्चियंस भी इसमें थे कुछ, लेकिन वो बहुत कम थे, जिसमें अगर देखा जाए तो मेनली 7% ही क्रिश्चियंस थे वहाँ पे टोटल पॉपुलेशन में, एंड दे आर तमिल्स एज वेल एज सिंघालीज। सो ये आपके क्रिश्चियंस हो गए। okay. So, in Belgium and Dutch community asserted the numerical advantage to grab more power and resources, यानी कि बेल्जियम में जो है डच कम्युनिटी जो थी वो न्यूमेरिकल एडवांटेजेस उनको मिलता था और मोर पावर एंड मोर रिसोर्सेज दे आर enjoyed. So on the other hand, Sri Lanka and Sinhala's community constituted about three-fourth population and had greater share of the power and resources of the country. So the Tamils are far behind the population as well as the socio-economic development. सोशियो यानी कि अगर वहाँ के सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की जाए, सो की पोजीशन इन आर्मी ब्यूरोक्रेसी गवर्नमेंट occupied by the Sinhalese. And if you talk about the geographically, Sri Lankan Tamils are the concentrated in the northern and eastern part of the island. So now this example given only to understand this power sharing topic. सो रूल ऑफ द मेजॉरिटी इन श्रीलंका, अगर श्रीलंका में जो रूल था मेजॉरिटी के बेसिस पे वो क्या था, थोड़ा सा उसको भी समझ लेते हैं। सो ड्यू टू इज न्यूमेरिकल सुपीरियोरिटी, यानी कि आपने देखा कि परसेंटेज के बेसिस पे जो है वहाँ के राइट्स वहाँ के पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, कि जो इसकी मेजॉरिटी ज़्यादा होती थी वो पावर को ज़्यादा इंजॉय करते थे। सो ड्यू टू इट्स सॉरी, जो ज़्यादा एजुकेटेड होते थे, जो ज़्यादा एलिजिबल होते थे, जो रिच होते थे, दे एंजॉयड मोर पावर. सो ड्यू टू दिस न्यूमेरिकल superiority, Sinhala's community dominated the governmental after elections, and the democratically elected government took a series of majoritarian, यानी कि those who are in majority steps to establish the supremacy Sinhalas in social, and they want to create social background. They want to establish social background in the supremacy of the Sinhalas in social, cultural, economic fields, and this is known as the मेजोरिटेनिज्म के, इसी को मेजोरिटेनिज्म बोला गया। एंड एक एक्ट पास हुआ था स्टूडेंट्स 1956 में, 1956 में एक एक्ट पास हुआ जिसमें सिंहलाज को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया। सिंहलाज
ऑफिशियल लैंग्वेज इसको डिक्लेयर किया गया। एंड बुद्धिज्म वाज डिक्लेयर एज द स्टेट रिलीजन, यानी कि बुद्धिज्म जो लैंग्वेज था उसको स्टेट लैंग्वेज एज अ डिक्लेयर किया गया। Okay, and according to government, they want to protect and propagate the foster buddhism, which was the religion of सिंहलाज, यानी कि जो बुद्धिज्म आपको पता है कि ये सिंहलाज की रिलीजन थी। एंड सिंहलाज वर गिवन प्रियोरिटी एंड प्रेफरेंस, यानी उनको प्रियोरिटी और प्रेफरेंस किस बेसिस पे दिया जाता था, गवर्नमेंट जॉब्स एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। So this measures and several others completely secured the dominance of सिंहलास एंड एलिनेटेड द तमिल्स, यानी कि ये डोमिनेंस कर रही थी किसको, सिंहलास को, और एलिनेटेड कर रही थी तमिल्स को। सो द तमिल्स फेल्ट देयर लैंग्वेज कल्चर एंड देयर वेरी एग्जिस्टेंस वेरी थ्रेटेंड, यानी कि तमिल्स को ये लग रहा था कि हमारी लैंग्वेज को, हमारे कल्चर को थ्रेट किया जा रहा है, हमारे उन सारे वैल्यूज़ को, हमारे जो भी कल्चर्स हैं उनको इग्नोर किया जा रहा है। सो दे वर डिनाइड इक्वल राइट्स एंड दे डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन all walk of life. So the government and army, bureaucracy and educational arenas were dominated by the majority community, यानी कि जो majority community थी वो minority को eliminate कर रही थी। So obviously the relation between the two community became strained। ये तो कॉमन सी बात है कि अगर दो लोगों के बीच में किसी भी तरीके से अगर इक्वलिटी को फॉलो ना किया जाए तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना, किसी तरीके के डिस्प्यूट का होना, ये ऑब्वियस है। सो कॉन्फ्लिक्ट इन सोर्ट विच ग्रेजुअली टुक द फॉर्म ऑफ अ सिविल वॉर, और इसी के वजह से स्टूडेंट्स से वहाँ पे सिविल वॉर हुआ। एंड सिविल वॉर, यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिविल वॉर? a violent a violent conflict बिटवीन वरियस ग्रुप्स विद इन अ कंट्री, यानी कि एक कंट्री के अंदर जो वरियस ग्रुप्स होते हैं, अगर उनके बीच में किसी टॉपिक को लेकर के, किसी भी इशू को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट होता है, एंड इट इज़ अ लॉन्ग ड्रॉन आउट कॉन्फ्लिक्ट ऑन अ स्मॉलर स्केल देन अ वॉर, एंड दिस इंसिडेंट दिस इज कॉल्ड अ सिविल वॉर, इसी को सिविल वॉर बोला गया है। तो सिविल वॉर वहाँ की जो कम्युनिटी थी उनके बीच में स्टार्ट हो गई, क्योंकि दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर पावर एंड देयर पोजीशन इन कंट्री। सो दैट्स वाई दे हैव स्टार्टेड द सिविल वॉर। सो जो अलग अलग पार्टीज थी, अलग अलग सोसाइटी के ग्रुप्स थे, दोज हु आर कॉल्ड द सोशल ग्रुप्स, दे हैव स्टार्टेड द वॉर एंड दे हैव स्टार्टेड द कॉन्फ्लिक्ट टू ईच अदर। सो ये एक एग्जाम्पल्स हो गए इसको समझने के लिए कि वाई वी हैव नीड द accurate power sharing and why we have need fair power sharing and why we have divided many powers to between our central government, our state government and the local government. So now some topics given in your Belgium also and some in Sri Lanka. So now let's continue with some examples. So first we take introduction. In this chapter we will talk about the power which held by the government, and in every nation there are different two communities, social groups. Along with this they may have conflict between them, and it is also the spirit of democracy. So that is why chapter is so important to study for us, क्योंकि हमें इसको समझना होगा कि पावर शेयरिंग है क्या चीज़ and why we have need power sharing. So we have taken two examples and we have discussed about the Belgium and the Sri Lanka. So here given a meaning, what is the meaning of power sharing? So power sharing is a technique to share the power and different levels. So at different levels, यानी कि different levels पे अलग अलग तरीके से power को शेयर करना है, लोगों को राइट्स देने का जो टेक्निक होता है, that is called the power sharing. So it is an idea inculcated in the democracy so that the power is not concentrated at one hand only and that different form can keep a check on each other, यानी कि हर किसी के ऊपर ध्यान रखना, हर किसी को इक्वली ट्रीट करना, that is the main object of
power sharing. And India is an example of holding together federation. Yes, and you will study about this word in detail in next chapter, federalism. So where the power is shared between central and state government एंड डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स, यानी कि अलग अलग सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में कैसे पावर को इक्वली डिवाइड किया जाता है, वो इस चैप्टर में हमको देखने को समझने को अच्छे से मिलेगा. सो हियर गिवन एग्जांपल्स कम्युनिटीज रीजन ऑफ बेल्जियम एंड वी हैव डिस्कस दिस कि क्या क्या किसके कितने परसेंटेज हैं माइनॉरिटी के बेसिस पे, मेजॉरिटी के बेसिस पे, एंड वाई देयर created conflict between them. सो वी हैव टेकन दिस एग्जांपल. पावर शेयरिंग बेल्जियम के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया था कि बेल्जियम में क्या था, इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स फ्रॉम द डच फ्रेंच स्पीकिंग एरियाज इन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन unilaterally. Okay, and the transfer of the power from the central to state government will not be subordinate to the center, यानी कि एक दूसरे से वो सेपरेटली वर्क करते थे. And the separate government in Brussels with the equal representation for the French and Dutch, and the formation of community government elected by the people belonging to one language community, Dutch, French, German, wherever they live, and this has power regarding. So, कल्चर एजुकेशन लैंग्वेज रिलेटेड इशूज, किसी भी कंट्री के अंदर अगर इक्वली वहाँ पे ट्रीट नहीं किया जाएगा उनके, जैसे इंडिया के अंदर क्या है कि इंडिया इज़ ऑल्सो अ वेरी वास्ट कंट्री एंड हियर दिस country is a very diverse country, but we are following equality in our constitution, and on our constitution is completely based on the equality, the federalism. So that's why we have less chance of the conflict on the basis of the culture and the education language. And that's why in our constitution secularism has given also कि सेकुलर की कंट्री हमारे किसी भी रिलीजन को, पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी को स्पेशल कोई पोजीशन नहीं देती है, बिकॉज ईच एंड एवरी वन इज इक्वल. सो पावर शेयरिंग का रिजल्ट क्या होता है, वी कैन कंक्लूड दैट दिस बेल्जियम मॉडल इज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड but it is successful. So Belgian leaders realize that the country's unity is possible. कि किसी भी कंट्री की अगर यूनिटी की बात की जाए तो वो किस चीज़ पे बेसिस होती है, कि अगर हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे की फीलिंग्स की हम जो है वैल्यू करते हैं, एंड इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज़ एंड रीजन. सो विदाउट दिस वी कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम एनी वन यूनिटी. अगर हम यूनिटी की एक्सपेक्टेशन करें तो हम अगर ये चाहें कि हम सेपरेटली रह करके हम यूनिटी अपने कंट्री के अंदर हम एग्जिस्ट कर सकते हैं, एस्टेब्लिश कर सकते हैं, सो दैट इज़ नॉट ईजी एंड दैट इज़ नॉट पॉसिबल. सो वी शुड रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी वन in our country, especially for the religion and the ethnic. So Belgium and Sri Lanka, what was the similarities between both them? So similarities, both are the democracies, and differences, पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इज़ डिफरेंट, यानी कि पावर की जो शेयरिंग की गई थी वो उसके अरेंजमेंट में डिफरेंस यहाँ पे देखने को मिला. what is unique about the Belgium? Leaders have realized the unity of the country is possible only by the respecting. So, student, you have to focus on these words because this is the base of this topic. Respecting the feelings and the interest of the different communities and reasons. And next point is, what was the drawback in system followed by Sri Lanka? यानी कि श्रीलंका के अंदर जो सिस्टम फॉलोड किया गया था उसका ड्रॉबैक क्या था. So dominance of majority community Sinhalas, and because they are following the Buddhism na, and by refusing to share power and Tamils resulted in disunity. तो यहाँ पे डिफरेंट लोगों के बीच में था जिसकी वजह से इन लोग के बीच में डिसयूनिटी रहती थी. सो केस स्टडी ऑफ श्रीलंका, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल्स दिया हुआ है श्रीलंका का. सो देयर वर आल्सो रीजनल डिफरेंसेस, यानी कि डिफरेंसेस की अगर हम बात करें तो रीजनल डिफरेंसेस यहाँ पे हमें देखने को मिलता है. आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1948 श्रीलंका adopted a series of majoritarian measures to establish and Sinhala's supremacy over the
Tamils. In 1956 एक्ट वाज पास, ये आपको बता भी चुके हैं कि एक 1956 में एक्ट पास हुआ जिसमें सिंहलाज को सिर्फ जो है एक ऑफिशियल लैंग्वेज जो है डिक्लेयर किया गया, and that time population was around 2 crore, and overall there was a majority of Sinhala community, यानी कि अगर मेजोरिटी की बात करें तो सिंहाला कम्युनिटी की मेजोरिटी दिख रही थी वहाँ पे। एथनिक कम्युनिटीज ऑफ श्रीलंका, यानी कि एथनिक जो ग्रुप थे, दोज हु आर ऑन द बेस्ड ऑफ द रिलीजन एंड द कल्चर, दे कॉल्ड ethnic communities. So Sri Lankan Tamils occupy Hindus, Muslims, Sinhalese, 74% Buddhist, 7% Christian, and 18% Tamil. And here given 5 and 18% Indian Tamils, Hindu Muslim, and Muslim 1%. So this is the differences between them. Majoritarianism, what was this? So idea or belief. So you have to understand this word. The idea or belief that the majority community should rule the nation in whichever way that want is called majoritarianism. So students, you can understand this word. And what was the reason? In 1956, Act was passed in which Sinhala was made the official language. The government made policies that favored members of the Sinhalas community, and it also gives jobs to them only, यानी कि सिर्फ सिंहलास के ही लोगों को जॉब मिलती थी. State to protect and foster Buddhism, यानी कि they are following only the Buddhism, they are respecting only the Buddhism. Tamil protested when they realized, यानी तमिल्स ने जब प्रोटेस्ट स्टार्ट किया, व्हेन दे रियलाइज्ड, यानी जब उनको रियलाइज हुआ, दे आर बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड, यानी उनके साथ भेदभाव हो रहा है, उनके साथ पार्शियलिटी हो रही है, दे आर नॉट इक्वल इन कंट्री, सो विच सून कन्वर्टेड इनटू द सिविल वॉर. और यही इनकी जो डिस्क्रिमिनेशन थी, इनके अंदर जो एग्रेशन था, इनके अंदर जो ये एक तरीके से इनके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट जो है निकल के आ रही थी, वो एक सिविल वॉर में जो है वो कन्वर्ट हो गई. सो यहाँ तक तक तो हम लोगों ने समझ लिया. अब पोजीशन ऑफ श्रीलंका, श्रीलंकन तमिल्स की बात करेंगे कि श्रीलंका के अंदर जो तमिल्स रहते थे, ये तो हो गई सिंहलास की बात. तमिल्स जो रहते थे लॉन्च पॉलिटिकल पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर रिकॉग्नाइजिंग तमिल एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, यानी इन लोगों की भी अब डिमांड होने लगी कि तमिल को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज जो है डिक्लेयर किया जाए. डिमांडेड ऑटोनॉमी, यानी ऑटोनॉमी की डिमांड करने लगे. इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द एजुकेशन एंड जॉब, यानी जॉब और एजुकेशन में इक्वल अपॉर्चुनिटी की डिमांड करने लगे. पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्म्ड, यानी कि अब जगह जगह पार्टीज बनने लगी थी, पॉलिटिकल फॉर्मेशन होने लगे थे. एंड दे आर डिमांडिंग एंड इंडिपेंडेंट, यानी कि ये खुद को डिपेंडेंट डिक्लेयर करना चाहते थे. तमिल एलम इन नॉर्थ ईस्ट श्रीलंकन, यानी कि एक अपनी अलग ये कम्युनिटी की डिमांड करने लगे थे. सिविल वॉर, what was the causes behind this? So many Tamils died and were forced to leave the nation, यानी कि जो भी उस टाइम तमिल थे उनको फोर्सली जो है नेशन से, यानी कंट्री से बाहर निकाला गया उनको फोर्सली, और जिसमें कि बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो गई. सिटीजनशिप टू देम वाज डिनाइड बाय द न्यू लॉज, यानी कि सिटीजनशिप को ख़त्म कर दिया गया, जो न्यू लॉज वहाँ पे लॉन्च किया गया था. एंड व्हाट वाज द इफेक्ट, इसका इफेक्ट क्या पड़ा उनके ऊपर? The civil war affected social, economic, cultural life of Sri Lankan very badly. ये तो this is the generally, and they have affected with the civil war economically, socially and cultural life, यानी उनके हर एक aspects पे इसका जो है एक बुरा प्रभाव पड़ा. एंड दिस कैन अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ नेशन, यानी कि अगर किसी भी कंट्री के अंदर वहाँ के नेशन के बीच, वहाँ के कम्युनिटी के बीच, वहाँ के सोशल के बीच अगर कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है, किसी भी तरीके का डिस्प्यूट होता है, तो इसका इफेक्ट सीधा सा नेशन के ऊपर पड़ता है और नेशन कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाता है. सो दिस इज द मेन इफेक्ट ऑफ द war, civil war. So why is power sharing desirable in democracy?
डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है? वाई वी हैव नीड पावर शेयरिंग इन डेमोक्रेटिक कंट्री? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम टू रीजंस को समझेंगे। एक हो गया आपका प्रूडेंशियल एंड सेकंड वन इज मोरल। तो प्रूडेंशियल का मतलब होता है कि प्रैक्टिकली किसी चीज़ को करना, यानी प्रैक्टिकल तरीके से करना। सो बेस्ड ऑन द केयरफुल कैलकुलेशन, सो दिस इज ओके। एंड मोरल की अगर बात करें तो ये आपके राइट कंडक्ट पे होता है, यानी कि राइटली कंडक्ट करना, ये आपके मोरल पे बेस्ड होते हैं। सो अगर प्रूडेंशियल की बात करें तो ये प्रैक्टिकल होता है। तो इसके क्या आपको देखने को रिजल्ट्स मिलते हैं? रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स, यानी कि प्रूडेंशियल में कॉन्फ्लिक्ट जो है उसकी चांसेस बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाती हैं सोशल ग्रुप्स के बिटवीन। एंड स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर, यानी कि पॉलिटिकल ऑर्डर की स्टेबिलिटी होती है, बेटर रिजल्ट्स इसके निकलते हैं। अगर मोरलिटी के बेसिस पे अगर पावर शेयरिंग की जाए तो उसका क्या रिजल्ट्स आएगा? इट इज़ द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। सो स्टूडेंट्स, इन एग्जामिनेशन यू हैव this questions, what is the differences and which is the prudential form of the power sharing and which is the moral form of the power sharing. So you should know what is the differences between both of them. So people have the right to be consulted for government practices, and power sharing is valuable. So that's why power sharing is a valuable form of the power sharing in India. So let's understand what are the forms of the power sharing in India, principles of the democracy. So people are sources of the all political power, यानी कि कंट्री के अंदर जितने भी पॉलिटिकल पावर्स होते हैं उनके जो सोर्स होते हैं, दे आर द पीपल्स एंड दे रूल देमसेल्व्स थ्रू इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नेंस। क्योंकि रिप्रेजेंटेशन जो होता है, जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, एक्चुअल में वही जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है गवर्नमेंट के अंदर। रिस्पेक्ट इज गिवन टू डाइवर्स ग्रुप एंड इट्स व्यूज। एंड नेक्स्ट पॉइंट इज एवरीबॉडी हैज इक्वल शेयर इन द शेपिंग पब्लिक पॉलिसीज, यानी पब्लिक की जो भी पॉलिसीज होती है उसमें हर कोई इक्वली जो है पार्टिसिपेट करता है। एंड फॉर्म्स ऑफ द पावर शेयरिंग, सो फॉर्म की अगर बात करें तो हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, टू बेसिस पे टू फॉर्म्स जो है पावर को शेयर किया गया है इन दिस चैप्टर। व्हाट इज द पावर शेयरिंग ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली? सो पावर शेयर अमंग different organs of the government. Power is shared among government at different levels, and power is shared among the different social groups. So power is also shared among political parties, pressure groups, and the movements. Here given students you can understand easily. First, horizontal power sharing, and this is the legislator जो कि आपकी लॉज बनाने का काम करता है किसी भी कंट्री के अंदर, ये लॉज बनाता है। एंड हेयर गिवन अ एग्जांपल ऑफ पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव जो कि लॉज को इम्प्लीमेंट करने का काम होता है इनका। एंड जुडिशरी, अगर इन दोनों के बीच में किसी तरीके का कोई कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट होता है, सो दिस जुडिशरी रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन देम। उनके बीच के जो भी कॉन्फ्लिक्ट होंगे उनको डिसॉल्व करने का, उनको उनके सोल्यूशन के लिए जो है आपका जुडिशरी काम करता है। So this is the form of the government, form of the power sharing. So judge can also check the works of the other organs, यानी कि ये जज की ड्यूटी होती है। आपने पढ़ा भी होगा प्रीवियस क्लासेस में, और आप ऐसे भी जानते भी होंगे कि व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ जज। क्योंकि जज जो होता है वो सुप्रीम अथॉरिटी होता है। आपके प्रेसिडेंट के बाद का जो सुप्रीम अथॉरिटी होता है वो आपका जज ही होता है। एंड द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, what is the system of checks and balance? Keep eyes on everyone them. So this is the system of check balance, and the results in balance of powers, each organ checks other, यानी कि हर एक ऑर्गन जो है एक दूसरे के ऊपर नज़र रखता है। हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन इज अलाउड टू different organs to exercise different powers,
एंड नो ऑर्गन गेट्स अनलिमिटेड पावर्स, यानी किसी भी ऑर्गन्स को, गवर्नमेंट के किसी भी ऑर्गन्स को अनलिमिटेड पावर्स नहीं दिए गए। हर किसी के पावर्स को एक लिमिट में रखा गया है, और लिमिट में इसलिए रखा गया है कि जिसकी वजह से वो अपने पावर का मिसयूज ना कर पाए। सो ऑल मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, स्टेट असेंबलीज, यानी जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट एंड स्टेट assembly. So this is power shared among different organs of the government, legislature, executive and judiciary. That's why this is the system of power sharing in our country. So second is the vertical power sharing. Students, आपको ये भी जानना है कि second जो vertical power sharing है इसका क्या meaning होता है। So power is shared among different level of the government, सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि जो कि आपके सेंट्रल गवर्नमेंट में आता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद जो है आप सके आपका स्टेट गवर्नमेंट होता है, जो कि पावर को आपके डिस्ट्रीब्यूट करता है। एंड थर्ड वन इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, जिसमें आपके म्यूनिसिपालिटी एंड पंचायत, ये आपके थर्ड गवर्नमेंट में आते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ये थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पावर शेयरिंग, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, कम्युनिटी government in Belgium. Under this arrangement, government administration gives space to diverse social groups, यानी कि अलग अलग जो diverse group होते हैं सोसाइटी के अंदर। एंड इन दिस वे माइनॉरिटी कम्युनिटी, यानी माइनॉरिटी, दोज हु आर लेस इन सोसाइटी, गेट फेयर शेयर इन पावर, यानी हर किसी को उसके कास्ट पे, क्रीड पे, या फिर किसी भी रिलीजन के बेसिस पे उसको पावर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए। एंड पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। सो यहाँ की पॉपुलेशन कितनी है, एंड इक्वली डिवाइड होना चाहिए ईच एंड एवरी वन। सो अकोमोडेट सोशल डाइवर्सिटीज हु वुड फील अदरवाइज एलिनेटेड, यानी अगर हम सोसाइटी में डाइवर्सिटी है, अगर डाइवर्सिटी में हम जो है यहाँ पे सेपरेटली हम पावर को डिस्ट्रीब्यूट, अलग अलग लोगों को, कम्युनिटी को अलग अलग पावर देंगे, देन जो माइनॉरिटी ग्रुप होगा वो हमेशा खुद को एलिनेटेड, यानी कि वो सोसाइटी से खुद को एलिमिनेटेड और इग्नोर जो है फील करेगा, और इसकी वजह से कभी भी हमारे कंट्री या सोसाइटी ग्रोथ नहीं कर पाएंगी। तो ये चीज़ हमें इसमें समझना होगा। सो इन दिस लास्ट फोर्थ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, फोर्थ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या है। सो पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टी स्टूडेंट्स यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिया हुए, जैसे बीजेपी है आपकी, आप है, कांग्रेस है आपके, बहुजन समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है। So these are called the political parties. Pressure groups and movements influence those in powers, and influence of the interest groups, businessmen, industrialists, farmers, and the industrial workers. And the political parties, pressure groups, movement influence those in power. So students, I hope आप लोग को ये टॉपिक, ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। And what is the main object of the power sharing in this chapter, and why we have need power sharing in our democratic country। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आएंगे इस चैप्टर के बेसिस पे। एंड द प्रीवियस चैप्टर, सॉरी, इन हिस्ट्री we will discuss the important question, MCQs, and the case based study, and the reason assertions type of the question in next video. And those questions are the important for your examination, we will cover in next video। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको इससे कुछ बेनिफिट मिलेगा ज़रूर। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।